Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 23 चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Now we are going to cover up next topic which is challenges to Indian democracy. Since independence, India has been functioning as a responsible democracy. The same has been appreciated by international community. It has successfully adapted to the challenging situations. There have been free and fair periodic elections for all political officers from the panchayats to the president. There has been a smooth transfer of political power from one political party or set of political parties to others, both at national and state levels on many occasions. You will find many examples in our neighboring countries like Pakistan, Myanmar, and even Bangladesh where transfer of power has been done through military corps. जो जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तब से ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है कि ये डेमोक्रेटिक हमारा जो इंडिया वो फंक्शन करे एंड ये सेम चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा भी अप्रिसिएट किया गया है एंड इसने सक्सेसफुली बहुत सारे चैलेंजेस को जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन थे उसको इसने अडेप्ट किया है एंड ये फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहा है। ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट तक होते हैं एंड यहाँ पे स्मूथ ट्रांसफर होता है पॉलिटिकल पावर का पॉलिटिकल पार्टी या फिर सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से अदर्स तक मींस दूसरों तक। ये स्टेट लेवल पे भी होता है एज वेल एज नेशनल लेवल पे भी होता है बहुत सारे ओकेजन्स पे एंड आप लोग अलग अलग जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में सुना होगा, पाकिस्तान, म्यांमार और जो बांग्लादेश उनके बारे में। यहाँ पे पावर का ट्रांसफर होता है मिलिट्री कोर्प्स के थ्रू। The legislative, executive, and judicial organs have been functioning properly. The parliament and the state legislature control the executives effectively through the means like question hours, etc. More importantly, some significant enactments like the Right to Information RTI Act 2005, Right to Education 2009, and other welfare measures have empowered the people. The mass media, including print and electronic, have full autonomy and play a key role in formulating and influencing public opinion. Significant social change has taken place in almost all walks of life, and the nation is moving ahead on course of socio-economic development. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन आवर्स के थ्रू एंड यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनैक्टमेंट्स भी लागू है जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 में, राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 में एंड बहुत सारे वेलफेयर मीन्स भी इम्प्लीमेंट किए गए जिससे लोगों को एम्पावर्ड किया गया। मास मीडिया जिसमें प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसके पास फुल ऑटोनॉमी होता है। ये बहुत ज्यादा की रोल प्ले कर रहा है जिसमें ये पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करता है एज वेल एज इन्फ्लुएंस करता है। सोशल चेंज भी टेक प्लेस हो रहा है, मीन सोशल चेंजेस भी हो रहे हैं हमारे यहाँ पूरे जितने भी हमारे लाइफ है उसमें ऑलमोस्ट हर एक स्टेज पे सोशल चेंजेस हो रहा है, नेशन भी आगे बढ़ रहा है एंड ऑफ कोर्स हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। India is a very large country full of diversities linguistically, culturally, religiously. At the time of independence, it was economically underdeveloped. There were enormous regional disparities, widespread poverty, illiteracy, unemployment, and shortage of almost all public welfare means. Citizens had enormous expectation from independence. As mentioned above, India has changed a lot, yet there are various challenges that the country faces in terms of fulfillment of expectations of various sections of society. The challenges come both from prevailing domestic and international conditions as well as lack of adequate prerequisites for a smooth functioning of democracy. These are discussed below. इंडिया एक जो है बहुत बड़ी कंट्री है एंड इसमें बहुत सारी विभिन्नता है। इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड विभिन्नता है, कल्चर से रिलेटेड एंड रिलीजन से रिलेटेड। जब इंडिपेंडेंस के समय में हमारा जो इंडिया था वो इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड था,
ठीक है, ये अच्छे से डेवलप नहीं किया हुआ था। एंड यहाँ पे बहुत सारे रीजनल डिस्पैरिटीज थे, गरीबी थी, अशिक्षा थी, जॉब नहीं थे किसी के पास, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट थे। एंड यहाँ पे जो भी पब्लिक वेलफेयर के जितने भी मीन्स थे उन सबकी कमियां थी। सिटीजन के पास जितने भी भारत के नागरिक थे उन्हें आजादी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। जैसा कि ऊपर में मेंशन किया गया है कि इंडिया बहुत ज्यादा आजादी से लेकर अभी तक में चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है कंट्री के पास, जो कि हमारे अलग अलग सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं वहां से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, एंड उसको अभी फुलफिल करना बाकी है। एंड ये जो चैलेंजेस है वो प्रिवेलिंग डोमेस्टिक है एज वेल एज इंटरनेशनल कंडीशन से भी रिलेटेड है। इसमें जो भी डेमोक्रेसी है वो एक स्मूथली फंक्शन कर सके, इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस को अभी भी हम लोग को फेस करना है। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को हम लोग नीचे दिया गया उसको देखते हैं। इलिटरेसी Illiteracy among people was a matter of grave concern for the successful functioning of democracy in India on the eve of independence, and it still continues to be a major challenge. The level of education of citizens is a key to both the successful functioning of democracy and socio-economic development of the country, and perhaps more importantly, it is an essential condition for human dignity. But the state of formal literacy was almost dismal when India achieved independence. The literacy rate in 1951 was mere 18.33% and female literacy was negligible with 8.9%. It was therefore feared by many that the citizens would not be able to play their roles effectively and exercise their right to vote meaningfully, which is an individual's expression of the power of the people. तो जो इलिटरेसी था वो एक बहुत ही बड़ा मैटर था कि हमारा जो इंडिया है आज़ादी के टाइम में बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हमारा जो इंडिया है वो शिक्षित नहीं है। एंड क्या ये सक्सेसफुली हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री को ये फंक्शन कर पाएगा? एंड ये हमारा सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था। लेवल था एजुकेशन का सिटीजन के पास जो लेवल होता है एजुकेशन का, तभी वो हमें सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में हेल्प करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिससे हमारी जो कंट्री है वो आगे बढ़ सके। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए एक एसेंशियल कंडीशन है ह्यूमन डिग्निटी का। लेकिन जो स्टेट है फॉर्मल लिटरेसी का वो ऑलमोस्ट डिसमल था, मीन्स नेग्लिजिबल था जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस को अचीव किया। जो मेल का लिटरेसी रेट था वो 1951 में 18.33% था और फीमेल तो लिटरेसी बिल्कुल ना के बराबर था, मीन्स 8.9% था। एंड लोग ये डरते थे कि जो सिटीजन है यहाँ पे वो अपने रोल्स को इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर पाएंगे, मीन्स वो मीनिंगफुली वोट दे पाएंगे राइट पर्सन को या नहीं। As you also know, this apprehension, however, has been proved wrong by the Indian electorate over the years. In spite of a substantial number of them being illiterate, they have demonstrated maturity in the exercise of their right to vote on more than one occasion, thus resulting peaceful transfer of political power since independence. The Indian National Congress, under the leadership of Ms. Indira Gandhi, was very popular and powerful during the early part of 1970s. But in 1977's general election, the people of India rejected her primarily because of the misuse of power during emergency in 1975 to 1977 and provided an opportunity to the first non-Congress government at the center in form of the Janata Party. After that, there have been changes in the governments both at the center and in states ऑलमोस्ट रेगुलरली। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो भी चीजें थी वो रॉन्ग प्रूव हुआ, क्योंकि हमारा जो इंडियन इलेक्टोरेट है वो समय के अनुसार उसने खुद को साबित कर दिया कि जो लोगों का डर है वो बेकार है। एंड हम लोग का जो सब्सटेंशियल नंबर है कि हम लोग इलिटरेट थे, तो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लोग हैं उन्होंने मैच्योरिटी के साथ अपने वोट के अधिकार को सही से यूज किया एंड वो ऑकेजनली ये भी दिखा दिया कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो होता है ट्रांसफर वो पीसफुली हो रहा है इंडिपेंडेंस से अब तक। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो MS इंदिरा गांधी के अंडर में बहुत मतलब पॉपुलर था एंड पावरफुल था 1970s के दौर में। लेकिन जब 1977 का जनरल इलेक्शन हुआ तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया था इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 के बीच में। उन्होंने एक जो लोग थे उन्होंने अपने वोट के थ्रू फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी दिया सेंटर में आने का, एंड ये थे जनता पार्टी। इसके बाद गवर्नमेंट्स चेंज होते रहे सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल्स पर रेगुलरली।
Literacy is necessary not simply for enabling citizens to participate in elections and exercise their right to vote effectively. It has other important implications as well. Literacy enables citizens to be aware of various issues, problems, demands, and interests in the country. It also makes them conscious of the principles of liberty and equality of all and ensures that the representatives elected by them truly represent all the interests in the society. Universal literacy is therefore a must for the successful functioning of Indian democracy. Although according to 2011 census, the literacy rate has risen to 74.04%, the female literacy rate is still lagging at 65.46%. This means that over one-fourth of the country's population is still illiterate, while among women, nearly 1 out of 3 is not literate. If the children have access to basic education, the problem of illiteracy can be checked. Recently, the right to education is provided as a fundamental right. We hope that this will help the cause of educating the children universally. तो जो लिटरेसी है वो सिर्फ लोगों को जितने भी सिटीजन है उसको इनेबल नहीं बनाना है कि वो आप सिर्फ इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो और अपने वोट का इफेक्टिवली यूज करो। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस मीन्स ये एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस भी है। लिटरेसी है वो लोगों को इनेबल करता है कि वो उनके अलग अलग जो समस्याओं के जो मुद्दे हैं, जो उनके खुद की प्रॉब्लम्स है या फिर डिमांड्स है, इंटरेस्ट है कंट्री में, वो भी को जान सके, उसके प्रति वो जागरूक हो सके एंड लोग कॉन्शियस हो सके लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ ऑल एंड जो भी रिप्रेजेंट कॉन्शियस है प्रिंसिपल्स जो भी लिबर्टी का है, इक्वालिटी का है, इन सब के वो प्रति जागरूक हो सके एज वेल एज जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिनको वो इलेक्ट करते हैं एंड वो जो सही तरीके से लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी तरफ भी उनको जागरूक होना है एंड ये सब कैसे होगा? लिटरेसी से होगा। जो यूनिवर्सल लिटरेसी है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। हमारा 2011 सेंसस के अनुसार जो लिटरेसी रेट था वो बढ़ चुका था 74.04% एंड जो फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो अभी भी बहुत पीछे था 65.46%। इसका मतलब जो 1/4 जो हमारा कंट्रीज पॉपुलेशन है वो अभी भी इलिटरेट है, जबकि जो विमेन का है वो जिसमें से 3 में से अभी जो एक जो विमेन है वो अभी भी अशिक्षित है। अगर चिल्ड्रन के पास जो बच्चे हैं उनके पास बेसिक एजुकेशन का एक्सेस हो तो इलिटरेसी जो है उसकी प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है एंड राइट टू एजुकेशन है प्रोवाइड किया है इसे फंडामेंटल राइट के रूप में एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो राइट है वो लोगों जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी उनको पढ़ने का मौका मिल सके एंड ये हमारे लिटरेसी रेट को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। Poverty. It is generally said that for a hungry person, right to vote does not have any meaning. For him, her, the first requirement is food. Therefore, poverty is considered as the greatest bane of democracy. It is, in fact, the root cause of all kinds of deprivations and inequalities. It is the state of denial of opportunities to people to lead a healthy and fulfilling life. Of course, India inherited poverty from the long exploitative British colonial rule. But it continues to be one of the gravest problems today. Even now, a considerable proportion of Indian population lives below poverty line, called BPL. The poverty line means an income level below which human beings cannot provide for their basic necessities of food, much less for clothes and shelter. The governmental definition of poverty line during the 1960s sought to measure the extent of poverty on the amount of income required to purchase the barest minimum desirable food having nutritional standards of caloric intake by a person. According to it, in Indian conditions, a person in rural areas needs an average of 2,400 calories per day and in urban areas an average of 2,100 calories per day in order to keep himself above the poverty line. During the 1990s, non-food items like clothes, employment, shelter, education, etc. got included in the definition of poverty. तो हम लोग देख सकते हैं कि और ये जनरली कहा भी गया है कि जो भूखा इंसान है उसे अगर हम लोग बोलेंगे कि आपके पास वोट देने का अधिकार है आप उसका यूज करो तो इसका उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनके लिए उनका पहला रिक्वायरमेंट होगा खाना। इसलिए जो गरीबी है वो एक सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है एक हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए। इनफैक्ट ये हमारा रूट कॉज है जिसमें जितने भी डेप्रिवेशंस आते हैं या फिर जितने भी इनइक्वालिटीज है उसका जो रूट कॉज है वो है पॉवर्टी मीन्स गरीबी।
ये एक ऐसा कंडीशन है पॉवर्टी जिसमें लोग अपने हेल्दी लाइफ को भी नहीं बिता सकते, अपने लाइफ के पूरे विशेस को भी फुलफिल नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स जो इंडिया है उसने जो पॉवर्टी को इनहेरिट किया है, कैसे इनहेरिट किया है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के एक्सप्लॉइटिव नेचर से। मीन्स जो ब्रिटिश थे वो हमारा बहुत ज्यादा शोषण किए थे, एंड उस शोषण का नतीजा है कि हमारा जो इंडिया है वो गरीब हो चुका है। एंड ये हमारे सबसे बड़ा आज का समस्या है। आज हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बीपीएल है, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम लोग बीपीएल बोलते हैं। गरीबी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी लाइन मीन्स क्या होता है? जो इनकम लेवल, जो कि ह्यूमन बींग्स जो भी उनकी जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि खाना, कपड़ा और शेल्टर, इसको ये लोग खुद से नहीं ले सकते हैं, मीन्स वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा पे। एंड जो गवर्नमेंटल डेफिनेशन है पॉवर्टी का 1960s के दौरान, वो क्या था कि जो गरीबी है उसमें जो भी इनकम है और आपका जो मिनिमम डिजायरेबल फूड है, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड से कैलोरी इनटेक पर्सन का, अगर आप वो ले पा रहे हो मीन्स आप ठीक हो, अगर आप नहीं ले पा रहे तो आप बीपीएल में आते हो। एंड जो इंडियन कंडीशन है लोगों का, जो रूरल एरियाज में लोगों को एवरेज 2400 कैलोरीज चाहिए पर डे, और अर्बन एरियाज के लोगों को 2100 कैलोरीज पर डे चाहिए, ताकि वो अपने आप को पॉवर्टी लाइन से ऊपर रख सके। लेकिन 1990s के दौरान जो नॉन फूड आइटम्स है, जैसे कि क्लॉथ्स, एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब को भी पॉवर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। Poverty in the contemporary phase is linked with systematic deprivation of rights. It is also associated with the notion of Human Development Index (HDI) as championed by Mahmood ul Haq and Amartya Sen. Viewed from the HDI perspective, the definition of poverty also includes socio-economic, political, and human rights issues under its ambit. जो पॉवर्टी है वह कंटेम्प्रेरी फेज है जो कि लिंक्ड है हमारे सिस्टमैटिक डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स, और इसका जो एसोसिएशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ भी है, जिसे HDI है, जिसको किसने बताया था? महमूद अल हक और अमर्त्य सेन ने। एंड जब HDI के व्यू से हम लोग देखें, उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो डेफिनेशन का पॉवर्टी उसमें हम लोग को सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स के जो भी इश्यूज आते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। The presenting phenomenon of poverty is attributed to many factors, one of which is mass unemployment and underemployment. A large number of people in rural areas do not have regular and adequate work. In urban areas, also the number of educated unemployed is very high. The growing population is regarded as a reason for poverty, though population is considered as the greatest resource in the country. In fact, the process of economic development have not been able to ensure social justice, and gap between rich and poor has not been bridged. Because of all this, poverty continues to remain a great challenge to Indian democracy. तो ये एक परसिस्टिंग फेनोमेना है पॉवर्टी, जिसमें इसके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एंड इसके जो मास फैक्टर्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जो लोगों का एक बहुत बड़ा जो लोगों का जो ग्रुप है रूरल एरियाज में, उनके पास रेगुलर और एडिक्वेट वर्क नहीं है, और अर्बन एरियाज में बहुत सारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसे सबसे बड़ा कारण माना जाता है गरीबी के लिए। लेकिन जो पॉपुलेशन है उसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स के नाम से भी मतलब कि तरीके से भी देखा जाता है कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है हमारे कंट्री का। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो एंश्योर नहीं करने में सक्षम है कि जो भी सोशल जस्टिस या फिर गैप है गरीब अमीर का, ये कभी भर पाएगा भी या नहीं भर पाएगा। एंड इन सब के कारण जो हमारा पॉवर्टी है वो अभी भी कंटिन्यू है, एंड ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी से, और हमें इससे मिलकर फाइट करना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination against girls and women exists in every walk of life. You must have had such experiences of prevailing gender inequality in our society and polity. But we know that gender equality is one of the basic principles of democracy. The Constitution of India enjoins upon the state to ensure that men and women are treated as equal and there is no discrimination against women. Fundamental rights and fundamental duties as well as the directive principles of state policy make these instances very clear. जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो लड़कियों और औरतों में हमेशा होते रहता है, उनके साथ हमारे लाइफ के हर एक स्टेजेस पे हम लोगों ने देखा। आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमारा जो जेंडर इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में अभी भी चलता है।
एंड ये जो जेंडर इक्वालिटी है एक बेसिक प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंश्योर किया है कि जितने भी मेन और वीमेन हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए एंड इनको इनमें भेदभाव नहीं किया जाए कि हाँ ये वीमेन है तो इनसे भेदभाव किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी का, जिसका इंटेंशन बहुत क्लियर है। But the discrimination against females continues to be a fact of life. It is clearly reflected in the sex ratio, child sex ratio, and maternal mortality rate. The number of females in comparison to males has been declining ever since 1901. In 1901, the sex ratio was 972 females per thousand males. It came down to 927 females per thousand males in 1991. According to 2011 census, it is 940 females per thousand males, which is still very unfavorable to females. In some of the states, the 2011 census reported a very low sex ratio of 877 females per thousand males. Haryana, the lowest being 618 in Daman and Diu and 866 in the city of Delhi. लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है फीमेल्स के अगेंस्ट में वो अभी भी कंटिन्यू है एंड ये हमारे लाइफ का फैक्ट है एंड ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है जो हमारा सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है। ये जो फीमेल्स के नंबर का हम लोग कंपैरिजन करते हैं मेल से तो ये साल दर साल कम होता जा रहा है। 1901 से देखिए तो 1901 में जो सेक्स रेशियो था वो 972 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पे एंड ये 1991 में और नीचे आ गया, मींस 927 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पे। और 2007 के सेंसस के अनुसार 940 फीमेल्स थे 1000 मेल्स पे एंड ये बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पे 2011 का हम लोग सेंसस देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कम सेक्स रेशियो था, मींस 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे। ये हरियाणा का कंडीशन है। 618 दमन एंड दीव में एंड 866 ये एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात हो रही है। सोच लो कितना आपका जो सेक्स रेशियो है वो कम है। The child sex ratio is a matter of greater concern. According to 2011 census, the child sex ratio 0 to 6 years in India is only 940 female children per 1000 male children. This is lower than the 2001 census, which reported child sex ratio of 927 female children per 1000 male children. It has been declining because of several factors like the prevailing preference for male child, discriminatory treatment against the girl child right after birth, and the increasing incidence of female infanticides and female foeticides. By using technology, people are forcing mothers to get the fetus of a female child aborted. The infant mortality rate among girl children is high as compared to that among boy children. The maternal mortality ratio as per the sample registration system 2004 to 2006 is 254 per lakh live births, which is considered very high. तो ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो 0 से 6 इयर्स तक में इंडिया में सिर्फ 914 फीमेल है पर 1000 मेल पर एंड ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये लो है जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो था 927 फीमेल पर 1000 मेल चिल्ड्रन एंड ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्यों? इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे कि ज़्यादा प्रेफरेंस मेल चाइल्ड को मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है गर्ल चाइल्ड राइट के जब उनका जब जन्म होता है तो उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड फीमेल फर्टिसाइड्स का, मीन्स उसको गर्भ में ही इनको मार दिया जाता है बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लोग हैं वो मदर्स को फोर्स करते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड को है वो अबॉर्ट कर दे, मीन्स उनका अबॉर्शन कर दे एंड जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है गर्ल चिल्ड्रन का बहुत ज़्यादा हाई है अगर हम लोग बॉय चिल्ड्रन से कंपेयर करें तो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 2004-06 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 254 पर लाख लाइव बर्थ्स, मीन्स ये बहुत बड़ा है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। Besides these demographic indicators, gender discrimination is very much apparent in the context of economic and social development. The female literacy rate in India in 2011 is 65.0
46%, whereas female literacy rate is 82.14%. Females are discriminated in respect of both employment and their representation in public life. No doubt, the 73rd and 74th Constitutional Amendments 1993 providing 33% reservation of seats in Panchayati Raj institutions, municipalities and municipal corporations have facilitated the cause of political empowerment of women. However, traditionally, women have been subordinated in this society, which restricts their participation in every field. This has been true for women belonging to more or less all classes and communities. Women Reservation Bill providing 33% of reservation of women in parliament has yet to be passed despite a very low ratio of women in both of the house of the parliament. इन सब के जो भी डेमोक्रेटिक हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इन सब के अलावा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत बड़ा मीन्स हमारे लिए अभिशाप है इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट में। जो फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग 65.46% था और वहीं पे जो मेल लिटरेसी रेट था वो 82.14% था। फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है दोनों जगह पे, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन हो पब्लिक लाइफ में। एंड यहाँ पे कोई डाउट नहीं है हमारे लिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd एंड 74th, यहाँ पे जो 1993 में प्रोवाइड किया गया था 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में विमेन्स के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। एंड इन्होंने फैसिलिटेट किया था कि जो भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है विमेन के लिए एक कोर्स के रूप में होगा। एंड ट्रेडिशनली जो विमेन है वो सबऑर्डिनेट है मैं सोसाइटी में, बस उनका उतना कुछ अभी वैल्यू नहीं है। इनका बहुत ज़्यादा ऐसे फील्ड है बहुत सारे जिसमें इनके पार्टिसिपेशन पे भी रेस्ट्रिक्शन है। एंड ये भी ट्रू है कि जो विमेन है वो जितने भी क्लासेस से बिलोंग करती हैं उनकी खुद की भी कम्युनिटी है। विमेन रिजर्वेशन बिल प्रोवाइड करता है 33% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट एंड इसको पास किया गया है। एंड ये बहुत कम रेशियो है विमेन का दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, मीन्स इनको तो अभी और रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। The Women Reservation Bill was meant to increase the proportion of women in parliament to provide opportunities for equal political participation. While most parties agree on the need for such a bill, none of them has given it a priority. ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी विमेन है उनका पार्लियामेंट में इनकी अपॉर्चुनिटीज, इनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इनको इक्वालिटी मिल सके एंड इनके जो भी पॉपुलेशन है उनको बढ़ाया जा सके उनके प्रोपोर्शन को। जबकि जो बहुत ज्यादा जो पार्टी है वो इस नीड पे अग्री तो की इस बिल पे, लेकिन लोगों ने इसे प्रायोरिटी नहीं दिया। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर का सारा इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।